Hello students, last time we have started vectors. So today we will study presentation of vectors which we have started last time also. So last time we did started the vectors, then we were doing presentation of vector in 1D. Presentation of vectors in 1D Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. So last time we did one example. In this 1D system, this is our reference origin. This is x-axis, positive x-axis, and left side is negative x-axis. We represent direction along x-axis as I cap and negative direction of x-axis as minus I cap. If we are moving from A and then reaching at B, we are moving from A to B. If A is at a distance x1 from origin and B is at a distance x2 from origin, so ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x1, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x2. सो AB डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? सो AB वेक्टर, वेक्टर क्या रहता है? which have magnitude as well as direction. सो वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है. सो इसमें तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड क्या है? दिस ए बी लेंथ. डायरेक्शन किधर को है? अलोंग एक्स एक्सिस. सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी डिस्टेंस को कितना लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 अलोंग एक्स एक्सिस है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे? आई कैप. सो ए बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप. Now we can directly believe on this formula and work on 1D horizontal vectors. If we take an example that a person has started from 2-meter mark and reaching at 100-meter mark. A is the initial point, B is the final point. Presentation is initial point, final point, ऊपर का डाल देना arrow. डिस्टेंस क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल. x2 इज द फाइनल वन, x1 इज द इनिशियल वन. सो यहाँ पर हमारे पास मेरे को निकालना है ए बी वेक्टर. सो व्हाट विल बी दैट? इट विल बी x2 माइनस x1 किधर को जा रहा है? ये x एक्सिस पर है, सो इट विल बी आई कैप. सो व्हाट विल बी x1 हियर? x1 हियर इट विल बी 2, x2 हियर इट विल बी 100. सो व्हाट विल बी द ए बी वेक्टर? So AB vector will be 100 minus 2 I cap. It will be 98 I cap. Here 98 will represent the magnitude. 98 will represent the magnitude and I cap is representing the direction. So in this way we have represented 1D vector along horizontal direction. In the similar manner, I can ask you to find a b vector comma b a vector if a is at 2 and b is at 100. So here so let's change this one. It is already taken 2. A is at 2 and b is at 100 because it is on x axis. So a b vector, इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है बच्चे? इनिशियल. ये बी वाला कौन सा है? फाइनल. सो हमें क्या लिखना रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल. सो हियर बी वाला मेरे लिए फाइनल है, सो इट विल बी 100 माइनस 2 आई कैप. इट विल बी 98 आई कैप. सॉरी इट्स 4, नॉट 2, इट्स 4. सो इट विल बी 96 आई कैप. डायरेक्शन किधर को है? पॉजिटिव आई कैप. वैसे अगर मैं बी ए वेक्टर लिखना चाहूं, now B will be initial and for me A will be final, क्योंकि मैं इसमें A से B ना जाकर B से कहाँ जा रहा हूँ? A की तरफ जा रहा हूँ. So B से A की तरफ जा रहा हूँ, तो फाइनल कौन सा है? A वाला. So it will be x2 minus x1 I cap. x2 will be 4 minus 100 I cap. So ये क्या बन जाएगा? minus 96 I cap. माइनस का मैग्नीट्यूड से कोई कंसर्न नहीं है. किसके साथ कंसर्न है? डायरेक्शन के साथ.
सो इन दोनों में देखिएगा बच्चे ए बी वेक्टर क्या आ रहा है 96 आई कैप, while over here it is b a vector that is 96 minus of I cap. So I cap is indicating positive x-axis, minus I cap is indicating negative x-axis. If I represent it on the number line, if I move from A to B, I am moving towards right side. If I move from B to A, obviously I am moving towards negative x-axis, and negative I cap is indicating that one. Kindly check. I think you are able to understand that one. Kindly note it down. Now we can study 1D vertical vector. Vertically also we can represent 1D vector. Like if I throw the object vertically upward, it comes downward. So upward and downward भी कैसा है 1D motion है. Secondly, if we fire a rocket, the rocket is also going directly straight. That is also 1D vertical motion. So vertical 1D vector. So in coordinate system, we represent vertical as y-axis. This is our origin, that is our reference. And here is our negative y-axis. So positive y-axis की डायरेक्शन को बताया जाता है j कैप के साथ, इसको बताया जाता है माइनस j कैप के साथ. अगर मैं यहाँ पर P से Q की तरफ जा रहा हूँ, P के कोऑर्डिनेट हैं y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं y2. सो PQ वेक्टर स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, P से जा कर रहा हूँ Q की तरफ. सो क्या बन जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, where I am going along y-axis, और along y-axis को कैसे लिखते हैं, that will be plus of j cap. So PQ vector will be y2 minus y1 j cap. Let's have one example for this. यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, ये y2 minus y1 क्या बता रहा है, it tells us about the magnitude, and this j cap is telling us about the direction. Let's have an example. If I am throwing the object from the surface, means I am starting from the origin, and it is touching a height of 100 meter. So I have to write OP vector. So OP vector क्या बन जाएगा बच्चे, this one will be origin, that is at 0 point, this is at 100 mark. So it will be y2 minus y1 j cap. y2 is 100, finally 100 पे आ रहा है, minus 0 j cap. So it will be 100 positive j cap. ये 100 क्या बता रहा है, it tells us about the magnitude, and j cap क्या बता रहा है, it is telling us about the direction. In the similar manner, if I have any random coordinates, then also we can do that. यहाँ मेरे पास दोनों y पर ना हो, एक नेगेटिव पर है एक पॉजिटिव पर है, तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा. Let's have one example. If I am starting from here, which is at a minus 4 meter mark from the origin, and I have to reach at Q, which is at a 10 meter mark from origin. सारे रेफरेंसेस से ही चेक किए जाते हैं. P वाला ओरिजिन से डाउनवर्ड है -4, Q वाला 10 मीटर पर है. हमें फाइंड करना है फाइंड PQ वेक्टर, देन फाइंड QP वेक्टर. So see here, PQ वेक्टर, दिस वन इज इनिशियल, दिस वन इज फाइनल. इनिशियली मेरे पास क्या है, P है, फाइनली क्या है, y2 minus y1 j cap. y2 is 10 and y1 is -4. So ये फॉर्मूले का माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस. So ये क्या बन जाएगा 14 j cap. And you can watch it logically also. 4 से 0 के बीच में गैप है 4 का, 0 से 10 के बीच में गैप है 10 का. तो टोटल गैप कितना हो जाएगा 14. एंड फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है 14. हम कहाँ को जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. सो इसलिए साइन भी क्या आना चाहिए डायरेक्शन का, पॉजिटिव, एंड इट इज पॉजिटिव. Similarly, if we have to find QP vector,
कहाँ को जाना है, Q से P, इनिशियल इज Q एंड फाइनल इज P, सो फाइनल माइनस इनिशियल, y एक्सिस पर है तो सीधा जे कैप लगा देना, प्लस माइनस फॉर्मूला खुद सेट करेगा, सो y2 माइनस y1, फाइनली कहाँ पे पहुंच रहे हैं, P पर, माइनस ऑफ 4 माइनस फॉर्मूले का -10, सो ये कितना बन जाएगा, -14 जे कैप, 14 ऑफ माइनस जे कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता है। सो यहाँ पर देखिए बच्चे, डायरेक्शन वैल्यू कितनी आई है 14 एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट, और ऑब्वियसली पी क्यू एंड क्यू पी बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। काइंडली चेक। I hope you are able to understand from this example that we only have to focus the formalism part, then also you can reach the exact point also. लॉजिक के बिना भी पहुंच जाओगे, लॉजिक से हमने एक बार फॉर्मूला डेवलप कर लिया है, अब फॉर्मुलिज्म की हेल्प से हम एग्जैक्टली उस पॉइंट्स तक पहुंचते जाएंगे, बल्कि कैलकुलेशंस भी इजी हो पाएंगे। So let's combine these two and form the 2D vector. 2D vector in Cartesian coordinate system. So our next one is 2D vector in Cartesian coordinate system. 2D vector in Cartesian coordinate system. Suppose in Cartesian coordinate system, two dimensions we represent with positive x-axis and y-axis. x-axis की भी पॉजिटिव रहती है, y की भी पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव भी रहती है। यहाँ पर ओरिजिन क्या है, मेरा रेफरेंस है। अगर मैंने यहाँ पर किसी P पॉइंट को लोकेट करना है जिसके कोऑर्डिनेट जनरल क्या है, x, y, और इस पॉइंट पर मैं कैसे लोकेट कर सकता हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस कवर किया है, देन वर्टिकली y डिस्टेंस कवर किया है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रीच O2 डायरेक्टली P। सो हमें OP वेक्टर लिखना है, तो अब हम इसमें यूज करेंगे बच्चे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिला दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन को I कैप से लिख रहे हैं, वर्टिकल की डायरेक्शन को पॉजिटिव y को j कैप से लिख रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, 2D वेक्टर बन रहा है। सो उसी फॉर्मुलिज्म को यूज करेंगे, इट विल बी x2 माइनस x1 i कैप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल से कोई कंसर्न नहीं रखता है, प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये शुरू कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। सो ये मेरे किसके काम करेंगे, x1 y1 का, और ये किसका काम करेंगे, x2 y2 का। सो हमारे पास OP पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास, x माइनस 0 i कैप, फाइनल माइनस 0 i कैप, प्लस y माइनस 0 j कैप। सो मैंने वेक्टर लिख लिया है x i कैप प्लस y j कैप। सो दिस इज आवर OP वेक्टर, ये कंप्लीट वेक्टर है। बट हमें क्या चाहिए साथ में बच्चे, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, लेंथ ऑफ द वेक्टर। सो लेंथ ऑफ द वेक्टर तुम लॉजिक से भी निकाल सकते हो। मैं O से P तक आ रहा हूं, तो ये x है ये y है, दीज आर परपेंडिकुलर, सो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख देते हैं, वेक्टर बाहर क्या लगा देते हैं, मॉडुलस, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं OP, और इसमें इसकी लेंथ कितनी आएगी, इट विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और सिंपली हम बोल सकते हैं I कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर j कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने वेक्टर लिख लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिख लिया, बट अकेली डायरेक्शन देखना चाहें तो कहां से देखें, क्योंकि इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा, मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब हमें चाहिए क्या, इसकी अगर सिंगली डायरेक्शन देखनी हो तो कैसे देखेंगे। सो इसमें डेफिनेशन को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं हम फिर से। वेक्टर क्या रहता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो जैसे हमने x एक्सिस को i कैप से लिखा था, y एक्सिस को j से, सो
हम जर्नल वेक्टर को कैसे लिख देते हैं, डायरेक्शन को ओ पी और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर विच आर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ओनली। सो ओ पी कैप डायरेक्शन क्या दे देगा मेरे को, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तुमने बस ये समझ लिया, काम बन गया। वेक्टर मेरे को पता है, मैग्नीट्यूड मेरे को पता है, आई कैन राइट दिस वन। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन। वेक्टर में कंबाइंडली सब कुछ था, मैग्नीट्यूड देखना है तो लेंथ आ जाएगी, डायरेक्शन देखनी है। सो ये डेफिनेशन याद रखनी है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या दे देता है, डायरेक्शन। लेट्स हैव वन एग्जांपल ऑन इट। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2,3। जब हमें कुछ भी नहीं दिया है दूसरा पॉइंट, तो ऑब्वियसली हम कहां से देख रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस ओरिजिन से। तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, ओ पी वेक्टर विल बी x is 2i कैप, y is 3j कैप। मैग्नीट्यूड बोले तो क्या बोला हमने, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 9 कितना बन जाएगा, अंडर रूट 13। वेक्टर निकल चुका है, मैग्नीट्यूड निकल चुका है। सो वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो अगर हम इसकी वैल्यूज को प्लग करें तो ये क्या बन जाएगा, ओपी कैप विल बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 13, that is 2 by root 13 i cap plus 3 by root 13 j cap। क्या ये सही है या गलत, लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अगर मेरा x है, ये मेरा y है, अगर ये पॉइंट्स हैं 2,3, सो ये क्या है बच्चे, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x और y दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव। और यहाँ पे भी x और y कैसे आ रहे हैं मेरे पास, पॉजिटिव आ रहे हैं। काइंडली नोट इट डाउन, pause the video then note it down। Let's have one more example। Let's have one more example। Find PQ vector comma PQ magnitude and PQ cap if P is 3 and 4, Q is 7 and 9। Here P is initial, so इसको हम लिख दे रहे हैं x1 y1, Q is final, so it is x2 y2। So PQ vector will be x2 minus x1 i cap। स्टेप्स को फॉलो करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ जस्ट प्लग द वैल्यूज, 7 minus 3 i cap plus 9 minus 4 j cap, it will be 4 i cap plus 5 j cap। ये बन जाएगा PQ वेक्टर। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ये आ गया वेक्टर। नेक्स्ट क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या रहता है, मोड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है 4, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 16 प्लस 25 अंडर रूट 41। लास्ट चीज क्या रहेगी बच्चे, डायरेक्शन। हमें पता है वेक्टर किसके बराबर रहता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड को देखें, ये है पी क्यू, वेक्टर इज पी क्यू वेक्टर, डायरेक्शन को पी क्यू के ऊपर कैप। सो पी क्यू कैप क्या बन गया, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो अगर हम इसकी वैल्यू प्लग करें राइट साइड पे, सो इट विल बिकम PQ cap is equals to vector is 4 i cap plus 5 j cap
मैग्नीट्यूड इज √41। सो इस तरह से हमने बच्चे आज सीख लिया है वर्टिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है 1D में। सेकेंडली 2D वेक्टर्स जो कि कॉम्बिनेशन है किसका किसका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर, उससे हम क्या निकाल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डेफिनेशन से हम क्या निकाल सकते हैं उसकी डायरेक्शन। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।